Assalamu alaikum. Welcome back to all of our students after a summer break, and hope you all of students will be fine. And I hope you guys have a good summer vacation. Okay, so after summer vacation now, inshallah, we will start final term course. So today the first topic which is related to the final term course, which is accounting for merchandising business. Okay, accounting for merchandising business. So this is a learning objectives that we will cover all those topics we will cover in this week. Describe merchandising and identify business examples. Describe merchandising activities and identify the component of income for merchandising entity. Describe the business documents used. Describe both perpetual and periodic inventory systems, and analyze and record transaction for merchandise purchases. Okay, first of all, you should know that there are three types of business, which is manufacturing business, merchandising business, and services business. In manufacturing business, we buy raw material in a raw form, and then in a manufacturing environment, in a manufacturing factory, we convert these raw material into processed raw material into a finished product, and then that product will be available in the market for sale. So this is, for example, in a wood factory, first we buy a wood in a raw form, then we convert that wood, and finally we made a furniture from that wood, and then we present that furniture for sale in the market. Okay, so this is a example of manufacturing business. In merchandising business, a business directly purchases a ready-made product, and for the reselling purpose, business buy assets are ready-made, dated all ready-made, not in a raw form, in a final shape. We buy assets in a final shape, we buy product in a final shape, and business purchase it for the reselling purpose. Business buy it and directly sell it, buy it and sell it. So this is called a merchandising business. ओके, जिस तरह हम आम रूटीन में हम बहुत सारे बिजनेसेस को देखते हैं कि वो हम अपनी अगर पेशावर की एग्जांपल ले लें तो आपके इसी यूनिवर्सिटी रोड पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने शॉप्स हो गए, इसी तरह शोरूम के जितने शॉप्स हो गए, इसी तरीके से क्लॉथ्स का जो है ना वो बिज़नेस, वो ऑलरेडी क्या होता है, रेडीमेड तैयार चीज़ें लेके और वो इन्वेंट्री अपनी शॉप्स में, अपने वेयर हाउस में इस पर्पस के लिए रखते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे. ठीक है. एंड द लास्ट बिजनेस वी हैव अ सर्विसेज बिजनेस. इन सर्विसेज बिजनेस you just provide a services and you earn a fee or remuneration of against your services. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर प्रोवाइड करता है अपनी टीचिंग की सर्विस अपने स्टूडेंट्स को. इसी तरीके से लॉयर क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसके अगेंस्ट वो फ़ी लेता है. इसी तरीके से इंजीनियर अपने सर्विस प्रोवाइड करता है और वो अपने क्या कहते हैं, ये कैसा बिजनेस है, इसमें ना आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना आप कोई चीज़ बाय करते हो, जस्ट यू प्रोवाइड अ सर्विसेज एंड यू विल गेट फी अगेंस्ट दैट सर्विसेज. Okay, so these three types of business we have in accounting. ठीक है. Now we have services versus merchandising. ठीक है. Services business we already we have explained in detail that you just provide the services and you will get fee against that services. So net income is the difference between its revenue and the expenses incurred in providing the services. यहाँ पे सर्विसेज बिजनेस में आपका नेट इनकम क्या होगा, नेट इनकम आपका होगा द डिफरेंस बिटवीन इट्स रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस.
डिफरेंस होगा कि जो एक्सपेंसेस, जिस सर्विसेज के लिए आपने जितने एक्सपेंसेस किए और इसके अगेंस्ट आपको जितना रेम्यूनरेशन मिला, आपको जितना फ़ी मिला, ठीक है ना, आपको इसके अगेंस्ट जितना भी रिटर्न आ गया, इसके डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंसेस को हम क्या क्या कहेंगे, सर्विसेज, इसको सर्विसेज बिजनेस की इनकम हम कहेंगे। ये डिफरेंस एग्जांपल है, देखिए मेडिकल सेंटर्स है, इसी तरह 2GO है, SGV एंड को, देखो इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि एक डॉक्टर है, एक्सपेंसेस के लिए क्या होगा कि वो किसी मार्केट में या किसी प्लाजा में अपने लिए एक रूम पकड़ेगा कि इसमें वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा डिफरेंट मरीज़ों को, ठीक है। तो अब इस रूम की इसका जो एक रेंट हो गया, इसी तरह इस पे वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का, ये इसकी अभी एक्सपेंसेस है। अब इसके अगेंस्ट वो डेली के हिसाब से जितने भी मरीज़ों को वो देखेगा और जितना फ़ी वो इनसे लेगा, तो वो इसका क्या, उसका डिफरेंसेस महीने का, अगर आप इसका डिफरेंसेस निकालें तो वो इनकम है इसके किस चीज़ का, सर्विसेज बिजनेस का। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पे कोई गुड्स हम बनाते नहीं है, गुड्स रेडीमेड गुड्स हम बाय करते हैं फॉर द रीसेलिंग पर्पस। सो अर्न्स नेट इनकम बाय बाइंग एंड सेलिंग मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कहते हैं सिंपली गुड्स को, ठीक है ना, मर्चेंडाइज कहते हैं इसको, गुड्स बिजनेस भी कहते हैं, ठीक है, कि इसमें सिंपली हम गुड्स को बाय करते हैं और इसी गुड्स को फिर हम क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, और तैयार गुड्स को, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिप्रेजेंट गुड्स इंटेंडेड फॉर सेल, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं कि पावर बुक्स हो गया, SM, इसी तरह बहुत सारे मैंने एग्जांपल दे दिए कि रेफ्रिजरेटर का हो गया, इसी तरह एस वाले कंपनीज को अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे गुड्स बिजनेस है जो वो रेडीमेड प्रोडक्ट लेके इसको क्या करते हैं, अपने शोरूम में, अपने शॉप में इस पर्पस के लिए रखते हैं कि वो इसको क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। Okay, now we have the concept of wholesale versus retail. Okay, what's the difference between wholesaler and retailer? So the first one we have wholesaler, an intermediary that buys goods from products from manufacturers or other wholesalers and sells them to retailer or other wholesalers, ठीक है। होल सेलर्स का बिजनेस वो है जो वो बल्क पे लोग जाके उनसे बल्क पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पेशावर की अपनी एग्जांपल ले लें तो पीपल मंडी यहाँ पे एक होल सेल पॉपुलर मार्केट है, जो जितने भी आपके रिटेलर है, छोटे छोटे शॉप्सकीपर है, वो जाके वहाँ से जो होल सेलर मार्केट है ओवरऑल, वहाँ से जाके वो क्या करते हैं, अपने लिए, अपने शॉप्स के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट या गुड्स बल्क में बाय करते हैं और वो फिर अपने डायरेक्टरी में इसको जो है ना वो सेपरेट करके उसको फिर कस्टमर पे क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो होल सेलर वो मार्केट होता है, वो सेलर होता है जो वो किसी एक प्रोडक्ट को या दो प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करते, वो बल्क ऑफ प्रोडक्ट को जो है ना वो इकट्ठा ही इसको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया, आपके जितने भी बड़े बड़े होल सेल्स मार्केट हो गए, होल सेलर्स हो गए, कि आप जाके अपने शॉप्स के लिए आप इसे क्या करते हो, अपने लिए जो है ना गुड्स बाय करते हो और फिर आप अपने इलाके में इसको शॉप्स के ज़रिए अपने कस्टमर को फिर क्या करते हो, सेल आउट करते हो। रिटेलर बाइज प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड सेल देम टू कस्टमर। अब वही जो आपके रिटेलर है, जिन्होंने क्या किया है कि वो होलसेल मार्केट से उसने वही प्रोडक्ट्स गुड्स उठा के अपने शॉप्स में रख दिए, अब वो क्या करेगा, इसको परचून कहते, वो अपने इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर पे क्या करेगा, सेल आउट करेगा।
तो अपने आप कस्टमर को जो है ना वो इकट्ठे ही, अब इसने लेट सपोज 10 कॉटन्स जो है ना वो पेप्सी की ख़रीद परचेज़ किए, तो अब एक कस्टमर को 10 कॉटन्स को इकट्ठे नहीं देते ना, अब ये तो हर एक कॉटन को ओपन करके एक एक लीटर को वो कस्टमर पे क्या करेगा, सेल आउट करेगा। तो इसको कहते हैं रिटेलर, ठीक है ना। तो रिटेलर क्या करेगा, वो जो छोटे लेवल पे आप क्या करते हो, चीज़ों को सेल आउट करते हो। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए तो कि मैन्युफैक्चरर जहाँ पे ये प्रोडक्ट, जहाँ पे ये पेप्सी, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे होल सेलर जाके जो है ना बहुत सारे 50-60 कॉटन्स जो है ना वो बल्क पे बाय करते हैं अपनी शॉप्स के लिए। वो अपनी शॉप को यहाँ पे होल सेलर्स को लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं, वही रिटेलर जाके इन्हीं होल सेलर्स मार्केट से वो ये होल सेलर मैन्युफैक्चर मार्केट से थाउजेंड्स ऑफ कॉटन्स जो है ना वो बाय करते हैं। फिर होल सेलर मार्केट में वही थाउजेंड्स कॉटन्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये छोटे छोटे शॉपकीपर जो रिटेलर होते हैं, ये वहाँ पे जाके होल सेल्स मार्केट से वो कॉटन बाय करते हैं एंड देन वो अपने शॉप में ले आके अपने कस्टमर को फिर सेपरेट करके छोटे लेवल पे फिर इसको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। क्लियर? ओके, मेजरिंग नेट इनकम। अब हम देखेंगे कि मर्चेंट, देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जब हम नेट इनकम फाइंड आउट करते हैं या इसकी नेट इनकम को हम मेजरिंग करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। देखो पहले हम रॉ मटेरियल को बाय करते हैं, उसी रॉ मटेरियल के साथ फिर हम अगर हमारा कोई परचेजेस हमने की हो तो हम इसी परचेजेस को हम इसके साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। उसी इन्वेंट्री को फिर हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में फिर हम इसके लिए ऑब्वियसली हम इसको कोई ना कोई बंदा तो प्रोसेस करेगा, इसके लिए हम लेबर हायर करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे लेबर्स लगे होते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो क्या करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं और जब वो फाइनल फिनिशिंग फॉर्म में ले आता है तो इसको फिर हम क्या करते हैं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमें 50 चेयर्स का ऑर्डर मिल गया, तो 50 चेयर्स के लिए हम जो वुड मंगवाएंगे उसी वुड को हम पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में हम इस वुड को, जब हम बाहर से वुड को ट्रीज की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े पीसेस के फॉर्म में, रॉ फॉर्म में इसको लेके आएंगे तो वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में हम इसको रखेंगे। फिर जब हम इस पे 50 चेयर्स पे हम प्रॉपरली काम स्टार्ट शुरू कर देते हैं तो उसी रॉ पीसेस को हम उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन करते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर इस पे क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं इसी रॉ पीसेस को और इससे वो क्या करता है, इससे चेयर्स बनाते हैं, ठीक है। उन्हीं जब वो चेयर्स बन जाता है, जब वो स्ट्रक्चर बन जाता है चेयर का, फिर इस पे फिनिशिंग का काम जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में फिर होगा। फिनिशिंग का क्या काम क्या होगा, इस पे आप कील वगैरह जो है ना वो स्टक करते हो, इसी तरह इस चेयर्स के को आप जो है ना कलर वगैरह देते हो, इस चेयर के ऊपर आप जो भी रेक्सीन वगैरह चढ़ाते हो, जो भी रेक्सीन आप इसके ऊपर चढ़ाते हो, तो ये आप फिनिशिंग का काम है, तो ये सारे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आप जाके क्या करेंगे, इसकी फाइनली जाके इसको फिर आप क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो जब आप लेबर भी इस पे प्रोसेस करेंगे, फिनिशिंग डिपार्टमेंट से भी जो है ना फाइनली आउट हो जाएगा, तो आपके पास फिर हमारे पास क्या हो, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। उसी गुड्स का वो कॉस्ट का वो स्टेटमेंट जो आपने इस गुड्स बनाने पे जो है ना वो खर्च किया है, इस चेयर्स बनाने पे आपका जितना भी खर्चा आया उस खर्चे का वो आप क्या करते हो, आप कॉस्ट की, नहीं कॉस्ट की आप क्या करते हो, इन्हीं कॉस्ट की आप स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है।
तो इंशाल्लाह द मेजरिंग नेट इनकम ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी एंड कैश फ्लो ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी that we will cover inshallah in the next class. For today's class is this is enough. So inshallah next class के साथ फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.